جمعۃ المبارک 10 جولائی 2015 مطابق 15 محرم الحرام 1470 ہجری گڈ مارننگ جن کے پروگرامک تازہ ترین شمار ہیت میزبان تہندس خدمت مز حاضر سان طرف کرو مائی برس لول برت السلام علیکم اس امید کہ سن ناظرین یت کن جائے یت پروگرامس ست جڑت اللہ تعالیٰ تھین تمن سارے وار وتم خیریت سان عافیت سان اللہ تعالیٰ تھو سارے بصحت و سلامت موسمیاتی زن اوتر پہ رجحان اخ راحت پریت طرف سان سکول گھن والن شرین خاطر اکہ طرف راحت سان باغ والن خاطر راحت زمیندارن خاطر راحت عام لوکن خاطر راحت تو خطس زن یہ خطے کشمیر جموں کشمیر لداخ ات خاطر راحت کیازکہ زن گرشم کرائے تمہ نش میول راحت پتم کی دہ ووت لگاتار رود پیوان تو یہ رود پینہ ست باسو کہ من روزان ام برو باسان شاید کہ ہند زن موسم سہ گو ملک کن تمن گرم ترین علاقن ست بالکل مماثلت تر موسمس یہ زن انسان برابر سرکہ شانہ وسان تو بیہ زیادہ موسم گرم آسان بہرحال یہ دستور قدرتک اخ دستور اخ معیار اخ آسان پریت کن وز پریت کن موسمس پن پن رنگینی پریت کن موسمس پن پن کان خاص وجہ تان کان خاص کت تان تو موسمس ست جڑت کی مسائل تمن مسائلن ست پتہ وار 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 انسانس حال گژھان تو پتہ اوتر پروگرامس مز کران ذکر کہ 34 ڈگری گھنہ ست پیوان رود مگر ون وچ آز یہ کہ 17 ڈگری تگو کراس تم پتہ پیو رود بہرحال یہ وقت یہ سب چیزیں جو ہے یہ موسمی تغیر و تبدل چلتے رہیں گے جاری رہیں گے اور یہ پروگرام بھی جاری رہے گا گڈ مارننگ کے پروگرام میں آج رہوں گا میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان جاوید اور میرا ساتھ دیں گے اشفاق خادزی السلام علیکم کیسے ہیں اشفاق الحمدللہ آپ کیسے ہیں شکر خدا میں ونتو گو پٹن کن کوتہ رود پیو رات پہ کی زیادہ خدا رچن کی مسل ما گو نا پٹن علاقہ مز سپد یوت کا معاملہ کہین البتہ ہلکہ پھلکہ بارش زن پور وادی مز الگ الگ جائن وقفن کن سات سری نگر کن سات بارہمولہ کن سات پٹن علاقہ کن سات بدل علاقہ مز تو یہ وقف رود پٹن رات سلسل آز روت لت ہلکہ پھلکہ بارش رات دہس اندر تہ گئی ہلکہ پھلکہ بارش اور یہ واریاہ اخ رت اخ یت زن ونو سو نظام اخ ایکسپیرینس اخ کہ یل درجہ حرارت اکثر یل تہ بڑھان پتہ تمہ پتہ آسن سو اخ راحت اخ قدرت کی مہربانی ہاں قدرت کی مہربانی اور ٹیمپریچر گو اکی ساتھ پتہ ڈاؤن اور یہ خوبصورتی سان موسم تہ ذکر کرو خیر ناظر محترم چونکہ آج جولائی کی 11ویں تاریخ ہے اور اس تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آج کے دن کی اہمیت بھی چونکہ ہم موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن اور بھی کچھ اطلاعات آپ تک ہم پہنچاتے آج کا جو دن ہے خاص ہے 1989 میں 11 جولائی کو ایک دن منایا گیا تھا جب دنیا کی آبادی 5 ارب سے زائد ہو گئی تھی اور خوشی تھی تب لوگوں کے درمیان کہ دنیا کے اندر 5 ارب آبادی ہے لیکن یونائٹڈ نیشنز نے اس بات کو ذرا سا تشویش ناک قرار دیا اور کہا کہ اب آبادی کے اوپر تھوڑا کام کرنا چاہیے اور ورلڈ پاپولیشن ڈے کو اب آبزرو کیا جائے یعنی بین الاقوامی سطح پر آبادی کا دن منایا جائے اور اس دن کے حوالے سے آگاہی بیدار کی جائے کہ جو خاندانی نسل بندی ہے بچوں کے حوالے سے تعلیم ماں اور بچے کی صحت اور لوگوں کے جو حقوق ہے لوگوں کی آبادی سے جڑے جو مسائل ہیں ان سب پر بات کی جائے اور دیکھا جائے تاکہ ایک سسٹینیبل فیوچر باقی فیوچر جنریشنز کے لیے بھی بنایا جائے چونکہ ڈاکٹر صاحب اگر آج کی بات کریں تو 8 ارب آبادی اب کراس کر گئی ہے جس میں 8 ارب 23 کروڑ ٹو بی ویری اسپیسیفک یو این ڈی پی کا ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بتا دیں تو 8 ارب 23 کروڑ جو ہے 2025 میں آبادی کا جو نمبر ہے وہ پہنچنے کا خدشہ ہم کہیں گے اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ہمارا ملک جو ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے والا ہے چائنا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے لیکن جو ابھی جو ڈیٹا 2025 کا جو یونائٹڈ نیشنز کا ڈیٹا نکلے گا اس میں آفیشیلی یہ ریکگنائز کیا جائے گا کہ یہ دنیا لیکن ایک اہم بات یہاں پہ جی پلیز جو آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہمارے ملک کا جو 60 سے 65% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں
की आबादी पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे जो कैपेबल, कॉम्पिटेंट और एनर्जेटिक वर्क फोर्स है या नौजवान है वो हमारे मुल्क में ही आबाद है। और इस बढ़ती आबादी को कैपिटलाइज करने के लिए, इसको चैनलाइज करके हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो हम ख्वाब देख रहे हैं, तो 2047 तक विकसित भारत बनने का जो सपना है, उसमें ये बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हथियार भी बन सकती है, फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का थर्ड इकोसिस्टम यानी एंटरप्रेन्योर्स का, वो अभी हमारा मुल्क है तीसरे नंबर पर, और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे फायदा तो इंशाल्लाह होगा। और नाइजीरिया के साथ साथ हिंदुस्तान या पाकिस्तान या एशिया की कंट्रीज जो है बड़ी तेजी से इन ममालिक में आबादी बढ़ रही है, और उसी जो हमारा मुल्क है इस मुल्क में भी बड़ी तेजी से आबादी बढ़ रही है। और आबादी से जुड़े जो भी मसाइल है उन मसाइल पर आज के दिन आगाही दी जाती है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उन तक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहुंचे। खैर, आप तक पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से हाल चाल। दिन के हवाले से हमने आप तक इतला पहुंचे, अब मौसम के हवाले से बताता चलूं कि मौसम में तब्दीली आ गई। जैसे डॉक्टर साहब आगे पहले ही तमहीद में ही बात कर रहे थे कि मौसम अब खूबसूरत हो गया। आज श्रीनगर और जम्मू में मतलब आलूद रहेगा, बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी, हल्की बारिशें, और उसके साथ साथ श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। और ट्रैफिक हवाले से आपको खबर दें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। बड़ी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सुनमर गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर और फिर कारगिल श्रीनगर से कारगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। बड़ी गाड़ियों को शोपियां से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है। बाद में आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल से भी मौसूल कर सकते हैं। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाना है, आपकी मुलाकात आज के मेहमान से भी करानी है। क्या कुछ खास है आज के दिन पर, आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। ये 1 घंटा जो है बहुत खास रहने वाला है। एक वक्फे के लिए रुकते हैं और जरा देर बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और गुड मॉर्निंग JNK में आपकी मुलाकात मेहमान शख्सियत से भी कराएंगे, लेकिन इस वक्त हम आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। और मैं गुजारिश करूंगा अपने साथी अशफाक से कि वो सुर्खियों का आगाज करें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक उर्दू रोजनामे से आगाज करते हैं। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है, अखबार रकम तराज है। लिखता है 25 करोड़ सिविल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए, किसान क्रेडिट कार्ड वसी तर क्रेडिट रसाई को यकीनी बनाते हैं। प्रधानमंत्री किसान स्कीम से करोड़ों किसानों को फायदा। 1400 मंडियां ई नाम से मुंसलिक, मंडी तक रसाई मजबूत। पीयूष गोयल जी। डॉक्टर साहब, छोटी सी तस्दीक करना चाहूंगा कि ये 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड है। और एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है टूरिज्म मेला कोलकाता 2025 का इफ्तिताह। यूटी में फिर सयाहत की हवा चली। जम्मू कश्मीर महफूज और पुरसुकून, मगरबी बंगाल के साथ देरीना बाहमी शराकत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है 7,307 पिलग्रिम्स लीव जम्मू बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा इन कश्मीर। ओवर 17,000 पिलग्रिम्स विद अमरनाथ श्राइन ऑन थर्सडे। एक और सुर्खी इसी खबर से, इसी अखबार से, एजुकेशन मिनिस्टर एश्योर्स अर्ली अमेंडमेंट इन स्कूल टाइमिंग्स। मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे जो अगर हम बस देखते हैं कि सबसे ट्रेंडिंग क्या है वो ये है कि टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग्स करते हैं। स्कूल टाइमिंग से भी उतना ज्यादा इख्तलाफ नहीं है क्योंकि मौसम ही ऐसा था, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस फिर 1 घंटे के बाद ही बच्चों को देना पड़ती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा जो मसला है, क्योंकि वालिदैन घर में नहीं होते हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल के बगैर, उनके सुपरविजन के बगैर बच्चों के हाथ में मोबाइल देना या उनको ऑनलाइन
کلاسز کی طرف راغب کرنا، تو یہ ایک لمحہ فکری ہے جس پر عزت مآب وزیر تعلیم محترمہ سکینہ اتو صاحبہ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک انگریزی اخبار میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جو شہ سرخی ہے وہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے حوالے سے ہے کہ اسٹاپ پیڈلنگ ڈینجرس نیریٹو وانز ایل جی سنہا ایٹ میگا آؤٹ ریچ ایونٹ، سنہا شو کیسز نیو JNK آف گروتھ پیس اینڈ اپارچونٹی۔ اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار رقم تراز سے لکھتا ہے بیت اللہ شریف کے رسمی غسل کے پہلے مرحلے کا آغاز، 2 مقدس مساجد کی اتھارٹی نے غسل کعبہ کی تیاری میں در کعبہ کا پردہ اٹھایا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے موسم کے حوالے سے وادی میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی، 14 تا 16 جولائی ٹنل کے آر پار شدید بارشوں کا امکان۔ جی ڈاکٹر ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس میں 2 ڈیولپمنٹل خبریں جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مرکز نے جموں کشمیر میں 316 سڑکوں کے لیے 4224 کروڑ روپے مختص کیے۔ متعلقہ محکمے نے مرکز سے منظوری حاصل کرنے کے بعد پہلے ہی ٹینڈر مختص کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اسی اخبار کی دوسری سرخی ہے جموں کشمیر میں 2300 قبائلی طلبہ کو 4.7 کروڑ روپے اسکالرشپ جاری۔ انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں ایک سرخی اس اخبار سے، اخبار لکھتا ہے کلائمیٹ چینج ڈیفورسٹریشن رویج JNK's fragile ecology, cloud bursts, flash floods, landslides push region to edge, spike in floods, cloud bursts, landslides since March۔ یہ خبر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ڈیفورسٹریشن، چونکہ پرسوں بھی ہم کچھ دن پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ پیڑ لگانے کا جو کام ہے وہ جاری ہے لیکن بہت کم لگائے جاتے ہیں اور 6 لاکھ سے زائد پیڑ کاٹے گئے ہیں۔ اور ایک آخری اخبار میرے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار ہے، اخبار اپنے پہلے صفحے پہ رقم تراز ہے۔ چیف سیکریٹری اتل ڈلو ریویوز پریپریشنز فار انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن، اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے JNK گورنمنٹ پلانز ٹو اسٹیبلش ITES پارکس۔ آخری اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اسپورٹس کے حوالے سے خبر، ہندوستانی خواتین ٹیم نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرایا۔ ہندوستانی خاتون کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ میں تاریخ رقم کی T20 سیریز پر قبضہ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو JNK اور دوردرشن کی طرف سے مبارکباد جی بے شک۔ اور ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم آبادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر کے دنیا میں بھیجا اور اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور بہت ساری عنایات کی انسان پہ۔ ان عنایات پہ، ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، وہ ہے رشتے۔ رشتے جتنے مضبوط ہوں قوم اتنی مضبوط ہوگی، انسانیت اتنی مضبوط ہوگی، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، دراڑیں آ جاتی ہیں۔ کبھی اکثر اگر ہم دیکھیں تو یہ رشتے جو دور ہو رہے ہیں، ان میں مسافات کا اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا وقت کا ہے، جتنا زبان کا ہے، جتنا سوچ کا ہے۔ ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ ان کے جو والدین ہیں ان کی سوچ دقیانوسی ہے، والدین کو یہ لگتا ہے کہ بچے نافہم ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے، یہ ان کا خیال نہیں رکھتے، تو نتیجتاً ایک ایسا ماحول عمل میں آیا ہے جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ ہمارے بچے ایک طرف، ہمارے نوجوان ایک طرف، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ایک طرف، وہ ان کی بات نہیں مانتے، یہ ان کی بات نہیں مانتے، اور جو بیچ کا ہے اسے وہ چھوٹا لگتا ہے، وہ زیادہ بڑا لگتا ہے، اور جو بزرگ ہیں اسے دونوں نافہم لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور اس سوچ کی وجہ سے یہ جو دوریاں آئی ہیں ان رشتوں میں، یہ ہمارے سماج کو کس طرح سے اثر انداز کر رہی ہیں، اور کیا کوئی سدباب بھی ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ماہر نفسیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، جن کے ساتھ ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک تجارتی وقفے کے لیے رکنا پڑے گا۔ تجارتی وقفے کے اس پر آئیں گے تو سیدھی ملاقات آپ کی آج کے ہمارے مہمان سے کرائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جن کی۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے،
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की। बात रिश्तों की, बात जनरेशन गैप की, और बात उन वजूहात की जिनकी वजह से ये जनरेशन गैप्स हैं, और बात इस चीज़ की भी कि इन गैप्स को हम कैसे फिल करें या कैसे कम करें। बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर शहजादा सलीम साहब, जो एक माहिर नफ्सियात हैं और बच्चों की नफ्सियात के ज़्यादा ही माहिर हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जब हम इनसे बात करेंगे तो सिर्फ बच्चों के हवाले से बात नहीं करेंगे, हम नौजवानों के हवाले से भी बात करेंगे और बुजुर्गों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक दहाई से भी ज़ायद जो इनका सफ़र था रिसर्च का, नफ्सियाती रिसर्च का, उसमें इन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के साथ बात की, उन्हें समझने की कोशिश की, उनकी नफ्सियात को मापने की, जांचने की और परखने की बहुत एक उम्दा कोशिश की है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं अपने नाजरीन को कि शहजादा सलीम साहब लिखते भी हैं, शायरी भी करते हैं, समाजी मसाइल पे बात भी करते हैं, और हमारे यहाँ जब दूरदर्शन की हम बात करें तो आपने इनको अक्सर बेशतर देखा होगा हमारे यूथ फोरम प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट की हैसियत से ये नौजवानों को की रहनुमाई करते नजर आए हैं, और हमेशा इनके दिल में ये जज्बा मौजूद होता है कि किस तरह से हम इनकी हैंड होल्डिंग करें, और अगर कोई मसला है तो उस मसले का हल भी ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो बात हमने छेड़ी ये एक ऐसा अछूता मजमून है जिस पर बहुत कम बात हुई है, तो आज हमने गनीमत जाना आप यहाँ पे हैं, माहिर हैं माशाल्लाह, और आपसे अगर हम ये जानें कि जनरेशन गैप्स हैं क्या, मतलब अगर ये लफ्ज़ है, इसकी इस्तिलाह जो है, इस्तिलाह में इसका जो मानी है वो क्या है, और किस तरह से ये जनरेशन गैप्स बनती हैं, क्या ये हमेशा से चला आ रहा है या इसको कम ही वक्त हो गया? देखिए सर, असल में मसला ये है कि समाज जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। हम ऐसा बोले कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब समाज में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती है। तो अक्सर हम कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जब एक इंसान पैदा होता है उसका जो सफर है, डेवलपमेंट का सफर, तो वो डेवलप होता है बच्चे से लेकर जवानी की दहलीज पर आकर फिर बुजुर्ग भी बन जाता है। उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं वो जब इस समाज में अपना कदम रखते हैं, उन्होंने वो चीजें नहीं देखी होती है, वो चीजें, वो चैलेंज फेस नहीं की होती है, उन वैल्यूज को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए होते हैं अभी, क्योंकि वो नए होते हैं, न्यू सिटीजन्स, इसीलिए हम कभी कहते हैं सीनियर सिटीजन। तो एक नया बच्चा जो होता है या सेमी ब्लॉगेट में पहुंचने वाला एडोलसेंट बच्चा जो होता है, या यूथ की तहलीज पे, अभी हम कह रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर चंक, मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले 42% ऑफ पॉपुलेशन इज फ्रॉम 15 to 35। तो आज ये बढ़ गया है, अब तो 50 के 60 के करीब ही है, यानी हमारा मुल्क एक नौजवानों का मुल्क है। तो ये हम फख्र से कह सकते हैं हमारे पास काफी पोटेंशियल है। लेकिन जब क्योंकि नौजवानी एक इंसान का एक बेहतरीन वक्त होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम कहीं भूल जाते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो उम्र रसीदा अफराद है, उन्होंने शायद वो चीजें नहीं देखी है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, न्यू जनरेशन देख रही है। मैं बच्चों की वसादत से बात कर रहा हूं, वो ये समझ नहीं पाते हैं सने बुलोगेट में या जवानी में जो कदम रखता है। क्योंकि मसला ये है कि किसी साइंटिस्ट ने कहा था, बखूबी कहा था कि जो तरक्की हमने 100 साल में नहीं की है वो आज हम 20 साल में कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात आप कहें, वक्त तेजी से या किसी और चीज की। हमारा एक सोशोलॉजिस्ट ऑगबोर्न है, बड़ा मशहूर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल लैग का। वो कल्चरल लैग क्या होता है, जिससे हम इंटरजेनरेशन गैप पे आ जाते। उन्होंने कहा था हमारा मटेरियल कल्चर काफी आगे बढ़ जाता है। जैसे हमारे पास ऐसे घर नहीं थे, ऐसा आर्किटेक्चर तो शानदार था ही, लेकिन मॉडर्न लुक हमारा, इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, ऐसी कार्स नहीं थी, सुपर कार्स नहीं थी जो आज हमें है, ऐसी नहीं थी। ऐसी तो हम मटेरियली काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन नॉन मटेरियली जो हमारे वैल्यूज थे शायद पीछे रह गए। तो उसको हम बोलते ऑगबॉर्न्स कर्व।
बीच में जो सफर है ये कहीं रह जाता है, हम मटीरियली आगे बढ़ते हैं, नॉन मटीरियली पीछे रह जाते हैं। तो जब हमारे बुजुर्ग अफराद है कहीं ना कहीं उनके पास्ट में पांव रह जाते हैं, यादें होती है, यादें माजी अजाब हादसा में, तो एक नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, नॉस्टैल्जिया, तो उस नॉस्टैल्जिया में कहीं रह पाते हैं और यूथ उनको समझ नहीं पाते हैं कि जो एक नए फास्ट वे ऑफ लाइफ में, जैसे इन्होंने कहा कि मेरी जो रिसर्च तहकीक जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से की है उसमें ये देखा गया है, मतलब मैंने जो ये मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा वर्षा है, हमारा जो हेरिटेज था, कहीं ना कहीं अपील करता हमारे बुजुर्ग लोगों को बहुत। और हमारे पास आज उस रिसर्च की वजह बात कर रहा हूं कि फास्ट इतनी लाइफ हो गई है, एक मॉडर्न वेस्ट, मैं वेस्ट की बात नहीं करूंगा, मॉडर्न आउटलुक ऐसा बढ़ गया है कि हम एक मिनट की भी फुर्सत नहीं हमें किसी के साथ बात करने के लिए, एक इंडिविजुअलिस्टिक इनफरादी दुनिया में रह रहे हैं। जैसे इससे पहले हम इज्तिमाई दुनिया में रहते थे, एक घर में एक कमरे में सारे अफराद जो है जिंदगी बसर करते थे। आज आपके घर में 7 कमरे हैं, 7 अफराद 7 कमरों में जो है मुकीम हो गए हैं, तो किसी को किसी के साथ बात करने की फुर्सत नहीं है। और अगर एक ही कमरे में भी होंगे तो अपनी अपनी दुनिया में मगन होंगे। ऐसे में हमारा बुजुर्ग जो है जिसके पास एक वर्षा था, एक बड़ा नॉस्टैल्जिक हेरिटेज था, मेमोरी का हेरिटेज था, उसको लग रहा है कि शायद बच्चे जो है मुझसे दूर हो रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी जिम्मेदारियां है, अब तकाजा है समाज का, नया तकाजा है, वो शायद गलत है या सही है वो दूसरी बहस है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनके तकाजे बढ़ गए हैं। तो बुजुर्ग को लग रहा है कि वर्किंग वीमेन फील्ड में आई है, मेरा बच्चा भी कमाने जा रहा है, मेरे बच्चे को मैंने प्रिपरेटरी स्कूल में ग्रैंड पेरेंट को भेज दिया है, तो मैं किसके पास रहूं। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में तकरीबन 56% एजिंग जो है वो सोशली आइसोलेशन के शिकार हो गए हैं, यानी बिल्कुल वो तन्हा मतलब जो है रह गए। हमारी थ्योरी है सेग्रीगेशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन था, आज सेग्रीगेशन है, आज अलग है। एंगेजमेंट वर्सेस डिसएंगेजमेंट। एंगेजमेंट था, बुजुर्ग हमारे घर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, आज भी होना चाहिए, लेकिन कहीं हम भूल गए हैं ये बात। तो इससे क्या हुआ है, इंटर जनरेशनल गैप्स आ गई है। हमारे 10 साल के बच्चे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल है, तो वो उसका दादाजी तो कहता मेरा कोई फॉर्म इस पे अपलोड कर दो, वो उसको बोलता है दादाजी आपको ये पता नहीं है ये क्या है, खामखा मेरा वक्त जो है जो सर्व कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं जी। तो इससे क्या होगा, वो थोड़े सोशली आइसोलेटेड हो गए हैं, तो एक बड़ी गैप बन गई है जिसको हम इंटरजेनरेशन गैप कहते हैं। और इसके शिकार न सिर्फ हमारे बुजुर्ग अफराद बन गए हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको एक बड़ा विजडम, एक सोर्स मिलता अपने बुजुर्गों से, लेकिन वो कहीं लैग कर रहे हैं वो चीज। हमारे पास ये जो जनरेशन गैप है जिसकी आपने बात की कि दुश्मनी दरमियान चूंकि हुमन बुजुर्गन पन तकाज, नौजवान पन तकाज, बचपन दौर पन तकाज पेश करान, या अगर इस दौर कत करो जो वनक दौर यथ मज नई तकाज, नई चीज अडॉप्ट गमित यम चीज करान, वन यम सात यह गैप क्रिएट गमस, गैप क्रिएशन गई, अत गैप क्रिएशन दरमियान अकिस नौजवान सन्स, अकिस बुजुर्ग सन्स तिम खास जिम्मेदारी यम सन यमन दुश्मनी तर फिक्र कि यह कॉन्फ्लिक्ट अस दोन दरमियान कहें, बल्कि ये अंडरस्टैंड कर तिथ पे पकन ब्रोकन यम दुश्मनी। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, एक मशहूर एक फ्रेज अंग्रेजी जो जबान से लिया गया है कि इफ यूथ न्यू एंड इट। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, एक मशहूर एक फ्रेज अंग्रेजी जो जबान से लिया गया है कि इफ यूथ न्यू एंड एज गुड। अगर हमारे नौजवान समझते कि जिनसे हम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके पास एक ऐसा विजडम का जखीरा है, यमन निश सो अख दानई हुंद खजान यस दानई पन्निस पानस पे नाफिज कर जिंदगी मज ब्रोह पको। तो सन अत जाय सोचान सन बुजुर्ग त कि होली कुरान का एक मशहूर जो है आयात अल यौम कुल्ली शान वली कुल्ली यौमिन शान, यानी हर एक दिन जो है अपनी नई शान लेकर आता है। ये ऑलमाइटी का एक कमाल है। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जो यूथ है या अब दूसरी दुनिया में आ गए हैं जहां पर वो वैल्यूज चेंज हो गए हैं जो हमारे जमाने के वैल्यूज है। ये कमाल है एक सोशल चेंज का, और ये शायद ऑलमाइटी का एक कमाल है। यानी बखूबी हम अगर हम उसको समझेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट किसी हद तक कम हो सकता है। दूसरी बात,
ہمارے ایجنٹ کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ محکمہ سماجی بہبود میں سے بھی میرا تعلق ہے, ہمارے پاس ایسے کیسز آ جاتے ہیں جہاں پر گھر میں جو اگر جھگڑا ہو جاتا ہے بزرگ کے درمیان, نوجوان کے درمیان, وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اصل میں جب میں کرکس پہ پہنچتا ہوں نا, ایک چھوٹی کیپیسٹی میں کام کر کے ایک گراؤنڈ لیول ورکر ہو کر, جب میں اس نتیجے میں پہنچ جاتا ہوں کہ اصل میں کچھ نہیں ہے, برداشت کی قوت برداشت کم ہو گئی ہے, انڈرسٹینڈنگ کم ہے. میں آپ کے سوال کے ساتھ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں میں یہ تال میل بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, بزرگ یہ سمجھے کہ نوجوان کو نئے تقاضے ہیں, مجھے اس کو وقت دینا چاہیے, میں معذرت, اور نوجوان یہ سمجھے کہ بزرگ جو ہے اس کے پاس ایک بڑا جو ہے ناسٹلجک ایک میموری ہے, اس کو وہ ویلیو کرے. میں معذرت ہوں, اس سوال کے ساتھ ساتھ آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی سمجھائیے کہ یہ کس طرح کی سمجھ ہے, کون سی انڈرسٹینڈنگ چاہیے دونوں میں؟ انڈرسٹینڈنگ یہ چاہے, وہی میں کہہ رہا ہوں, انڈرسٹینڈنگ یہ چاہے کہ ہم ایک دوسرے کے نفسیات کو سمجھیں. میں آپ کے سبجیکٹ کے سوالے سے کہوں, میں یہ سمجھوں کہ جو میرا وقت تھا, اگر میں بزرگ ہوں تو جو میرا وقت تھا, میرے پاس ذمہ داریاں تو ہمیشہ ہر ایک انسان کے پاس ہوتی, لیکن اتنی فاسٹ لائف نہیں تھی. جیسے مجھے ایک بچہ جو ہے اس کو اسکول سے آ کے ٹیوشن پہ جانا ہے, اس کو اگر آپ کسی بھی دھرم سے ہو, اس کو آپ ریلیجس ایجوکیشن بھی دینا چاہتے ہو, سپوز درسگاہ بھی جانا ہے, اس کو سپورٹس میں بھی آگے بڑھنا ہے, اس کو اسکول کی ایکٹیویٹیز بھی کرنی تھی. اتنا نہیں تھا اس زمانے میں, یہ چیزیں نہیں کرنی تھی, کیونکہ ایک سائنٹسٹ نے بخوبی دوسری ایک بات کہی ہے کہ جو 5th اسٹینڈرڈ کے بچے کے ذہن پہ جو برڈن اس وقت ہے, یہ 80 ایئرس کے بزرگ تک جو اس نے پورا جو سفر کیا ہوتا عمر کا, اتنے برڈنز نہیں پڑے ہوئے ہوں گے. یہ اب سماج کو یہ اس کا دوش دے یا کیا کرے, لیکن چینج تو ہے, اس سے سوشل ریئلٹی, یہ سوشل ریئلٹی اس ونو نا کہ یہ گژھِ نہٕ آسُن ہُہ گژھِ نہٕ آسُن, یہ چھا سوشل ریئلٹی. أکِس 5مہِ جمٲژ منٛز پرن وٲلِس بچس چھُ ذہنس پٮ۪ٹھ یوٗت لوڈ اَسہِ ترومُت, یُس لوڈ نہٕ 60 ؤرین تام أکِس اِنسانس دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان اوس. اگر بزرگ یہ سمجھے کہ امس پن تقاض پور کریں, امس اک فاسٹ لائف منٛز سوچن, بہٕ چھُس ونان انڈرسٹینڈنگ تو بچہ ونہِ یہ کہ یہ ہسا میانہِ وقت میٲنِس دادا جی سٕنٛدِ وقتہٕ یا میٲنِس فادر سٕنٛدِ وقتہٕ اوس نہٕ یوٗت فاسٹ وے آف لائف کِہیٖنۍ. أمِس چھنہٕ موبایل فونٕچ ییٖژاہ جانکٲری ییٖژاہ مےٚ یوٗٹیوٗبٕچ وٕنکٮ۪ن چھےٚ, باقٕے گیجٹٕس چھِ. سُہ سمجھِ یہِ کتھ کہ نہ مےٚ پزِ أمِس نِش بِہُن, تِم چیٖز ہیٚچھِنۍ یِم نہٕ میٲنِس سماجس منٛز چھِ کینٛہہ. تہٕ بزرگ اوس ونان کہ بہٕ ہیٚچھا شاید تِم تہِ چیٖز وۄنۍ نٔے, کیونکہ لرننگ فیز میں اگر انسان رہے نا عمر بھر, اطلب العلم من المہدی الى اللحد, لرن فرام کریڈل ٹو گریو. اگر بزرگ بھی سیکھے بچے سے, اگر یہ مادہ وہ پیدا کرے کہ میں اپنے بچے سے سیکھوں گا, اور بچہ یہ بولے کہ میں ان چیزوں کو سیکھوں گا جو آج سماج میں موجود نہیں ہے, کافی حد تک لرننگ اور ڈی لرننگ کا جو کنیکشن ہے پیدا ہو جائے گا. میں شام کو آؤں گا, دادا جی سے پوچھوں گا, اپنے فادر سے پوچھوں گا جو عمر رسیدہ ہوں گے, میں اسے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے آپ کے زمانے میں کوئی سی ایسی چیز, آئی کین رائٹ ڈاؤن دیٹ آلسو, اٹ کین بی اے ویری گڈ بک فار ادرس ٹو اسٹڈی. میں وہ چیزوں کو اپنی زندگی میں ان تجربوں کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا, اور ہمارا جو بزرگ ہے وہ دیکھے گا کہ یہ گیجٹ جو ہے میرے تجربے کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں, یا میری جو اس وقت ہیلتھ کنڈیشن ہے اس میں کیسے سازگار ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے سماج میں کہ کوئی بزرگ ہے, اس کو کسی ہیلتھ سینٹر پہ جانا ہے, کوئی ٹیسٹ کرنا ہے, وہ بچے سے ہی پوچھتا ہے یہ کہاں, یہ لیب کون سا ٹیسٹ ہے, اس سے کیا ہوگا. اگر بچہ بھی تھوڑا بہت سہ تھوڑا برداشت, تو بزرگ تہ ون کہ مےٚ پزِ أمِس پرژھُن, پرژھُن. اکثر پیوان ونکٮ۪ن کینٛہہ فارمز بزرگن برٕنۍ, یِم چھِ پیوان اپلوڈ کرٕنۍ. أمِس چھُنہٕ بزرگس پتہ آسان کہ یہ اپلوڈ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ, کتھ کاؤنٹرس پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ, اتھ آدھار کارڈس کۄس چینج کرٕ بہٕ, یہ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ. اگر یہ نوجوانس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ حقارت چھُنہٕ, اگر نوجوان تہِ أمِس ہیلپ کرِ, تمس تہِ یِن درجات تو سُہ تہِ ہیٚچھِ أمِس نِش کینٛہہ, تو یہ انڈرسٹینڈنگ پٲدٕ. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک نیا ہی جو اس میں موڑ دے دیا اس جنریشن گیپ میں, وہ ہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی, جو آئی ٹی ریولیوشن آیا, اس کی وجہ سے بھی جو رشتے ہیں وہ اثر انداز ہو گئے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں, جس سے ہمارے بزرگ مانوس نہیں ہیں, نوجوانوں نے بچپن میں ہی دیکھا اور بچے اسی ماحول میں پیدا ہو گئے, اس ٹیکنالوجی نے کس طرح سے ہمارے رشتوں کو اثر انداز کیا, اور یہ جنریشن گیپس ہم اشیات کہ سات دوردرشن پہ پروگرام چلان دادا دادی کی کہانیاں, اتھے پہ اکثر کت کران نانہ دلیلن ہز, نان پتہ ونان نان جنت گائے کن دلیل پتہ ونان, اتھ پہ وہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تجربے کا جو خزانہ
ان کے پاس موجود ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس اہم بات پہ ہم آئیں گے کہ ٹیکنالوجی نے کس طرح سے رشتوں کو اثر انداز کیا. ایک تجارتی وقفے کے لیے ناظرین یہاں پہ ہم رکیں گے. تجارتی وقفے کے اس پر آئیں گے تو آج کے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب جو ایک ماہر نفسیات ہیں, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جن کی. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جن کے. شہزادہ سلیم صاحب ہمارے درمیان ہیں, ماہر نفسیات. بات کر رہے تھے ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی. یوزن ہمارے بزرگوں کو اگر یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھنا ہے وہ اگر بچے سے پوچھے گا تمس یور یہ کس مسئلہ تیوت ژے کیا دپان اتھ یت کن کرن یہ کلک کور اتھ کورس ٹائپ تو اور یہ سرچس من پتہ کور یس ژے وچھن چھ. تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان لگتا ہے, لیکن بزرگ جو اس چیز سے مانوس نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ایک خلیج ہو جائے بات میں وہ کتراتے ہیں. دپان ہے نا تھا وش پتہ اور منان پتہ تہ چھو نہ پتہ کنچ دکیان اسی زمانے کے ہیں. تو یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے یہ کس طرح سے ہماری جنریشنز کو ڈیوائڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات ہے نا, کافی ریسرچ اس پہ ہوئی ہے آج کی دنیا میں. ایک خلا پیدا ہو گیا ہے, ایک بیچ میں ایک کھائی ہے, اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو قدر لاگن کی ضرورت ہے. تو سن بزرگ تہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی مز دہ خدا حصہ نوان, مگر شاید تیتہ فاسٹ کی تیتہ تیز ترار کی. تو اس ونکن ونان کہ میون بچہ 5 یا 6 ورین ہند تیوت چلاو موبائل فاسٹ. حالانکہ وہ بھی ایک بحث ہے, دینا چاہے موبائل کی نہیں وہ دوسری بحث ہے. ہم بزرگوں کی بات اور بچوں کی بات یہاں کرتے ہیں. تو لیکن جتنی تیزی سے یہ کرتا ہے اتنی تیزی سے شاید میں یا میرا بابا جو ہے, جو اس کا دادا جی ہے, نہیں کر پاتا ہے. تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ جو ہے یہ بچے یہ ڈیجیٹل ایج میں ہی پیدا ہوئے. لیکن میں اپنی بات کروں گا, عمر کا ایک کافی حصہ گزرا تب ہمیں موبائل فون کی پتہ نہیں تھی. کافی ٹائم کے بعد جب ہم کالج کے بعد آئے تو تب ہم نے اس کا موبائل کا سامنا کیا. آج بچہ جو ہے ماں کو یہ لوری سنا رہی ہے, آپ نے سٹوری ٹیلنگ کی بھی بات کی, دادا دادی کی, بچے کی نظر موبائل پہ ہے. کھانا کھانے سے لے کر سونے تک بچے کی نظر موبائل پہ ہے. حالانکہ اسکرین ٹائم کو کافی کم بھی کرنا چاہیے ہمیں. لیکن یہی بچہ جب 10 سال 15 سال 20 سال یا 25 سال کا ہو جاتا ہے, نیچرلی اس کو ڈیجیٹائزیشن کی زیادہ پتہ ہوگی, ڈیجیٹل ورلڈ کی زیادہ پتہ ہوگی, جو ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں ہے, جس کا ایک میں کہوں گا نصف سے بھی زیادہ ایک عرصہ ایسا گزرا ہے جس نے یہ چیزیں دیکھی بھی. تو اس سے ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ پیدا ہو گیا. پھر ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں 2 حصے اور ہو گئے. رورل میں کتنا ڈیوائڈ ہے, اربن میں کتنا ڈیوائڈ ہے. شہری زندگی میں یعنی میٹروپولیٹن سٹیز میں اگر آپ پورے اپنے ملک کی بات کریں تو پھر ہماری جو دیہاتی زندگی ہے کتنا ہے. پھر اس میں ایک اور کلاس بن گیا ہے, پور میں کتنا ہے, رچ میں کتنا ہے. یعنی یہ بہت بڑی تحقیق ہے. شارٹ میں میں کہوں گا مختصراً یہ بات کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, ایک سوشل ریئلٹی ہے. یہ ڈیوائڈ جو ہے اس کو برج کرنے کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے. ہماری حکومت بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے. ہم نے ایج کے لیے کچھ ڈے کیئر ہومز کی جو ہے منظوری دی ہے. ہم کچھ لائبریریز میں نے دیکھی, ہمارے بہت خوش آئند بات ہے, سینئر سٹیزنز کا ایک سیکشن ہے جہاں پر لوگ پیپر سے لے کر الیکٹرانک گیجٹس کی فلمز بھی دیکھتے ہیں. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج میں جو ہے اپنے گھریلو زندگی میں جو ایجڈ پرسن ہے, ایلڈرلی پرسن, ان کا جو وقار ہے جو کھو گیا ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے ہاتھوں, اس کو پھر سے استوار کریں, بحال کرنے کی ضرورت. وہ کیسے کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنی چاہیے کہ ان کو بتانا چاہیے بچپن سے جو سوشلائزیشن ہوتی ہے نا بچے کی, جب ہم اس کو نارمز ویلیوز کی پتہ دیں گے, بیٹا ایسا ہے, اس کو سلام کرنی ہے, اس کو ایسی چیزیں کرنی ہے. اگر ایلڈرلی کی یعنی ایجنگ کی, عمر رسیدہ بزرگ کی میں کہوں گا عزت کرنا بھی اپ برنگنگ سوشلائزیشن کا حصہ ہو.
जैसे कुछ दहाइयों पहले हम बोलते थे कि हमारी मादरी जबान जो है इसको भी स्कूल में लाइए जी, तो हम काफी कामयाब हुए, हम कर रहे हैं बस पे काम। इसी तरह अब अपब्रिंगिंग के लिए ओल्ड एजिंग डे 1 अक्टूबर हमारा एजिंग का डे होता है, स्कूल्स में ऑब्जर्व करिए। जी, कभी अब ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों की मीट कराइए, जैसे बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं। कभी आप कम्युनिटी में जो है अपने ही खानदान के, मैं नहीं कहूंगा आप बोलेंगे सर आप अच्छी बात कर रहे हैं, इसका कोई ये हवा में है, इसका कोई ग्राउंड नहीं, मैं कहूंगा अपने खानदान में जितने भी बुजुर्ग लोग 60 साल से ज्यादा जिनकी एज है, कभी उनका अपनी जो है अपनी ग्रैंड पे जो चिल्ड्रन के एज के जो बच्चे हैं उनके साथ मीट कराइए, जैसे आप नज़्र नियाज करते हैं, दावतें करते हैं, एक बार ऐसा भी करिए। मैं तो एक दिन अपनी हुकूमती सरकार को ये भी दिया था एक मशवरा, छोटा सा, अपनी छोटा वो बड़ी बात, कहा कि आप हमारे हॉस्पिटल में जेरेट्रिक वार्ड्स बनाइए, बुजुर्गों के लिए अलग वार्ड्स बनाइए, उनके लिए हालांकि कर रहे हैं स्पेशलाइज, हालांकि कम हो रही है लेकिन हो रही है, जेरेट्रिक में काफी स्पेशलाइज हो रही है, आज बहुत बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन असल में ग्राउंड पे चेंज होना चाहिए, वो तब होगा जब आप वैल्यूज को समझे, एंगेज करिए लोगों को। हाँ, बुजुर्गों को भी चाहिए, मैं कहूंगा ये बुजुर्गों को भी चाहिए कि एक खास वक्फा होता है, जैसे जो हमारे बुजुर्ग ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, 60 के बाद वो छोड़ देते हैं, बस अब तो हम रिटायर हो गए, ऐसा नहीं। मैंने यूरोप में देखा है कि 60 के बाद एक नई लाइफ पैदा होती है। तो अब 60 के बाद वो क्या कर रहे हैं, मशगूल हो रहे हैं, चाहे हमारे पहले लिमिटेड थिंग्स थी जैसे गार्डनिंग वगैरह, आज अस दुनिया रिटायरमेंट पर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में कूत्या चीज अगर कुछ टाइम आए बह वन तुम गो हैरान। वन ब्या चीज ऐसे बहुत सारे जॉब्स है जहां पर हमें तजुर्बे की ज्यादा जरूरत है। एनर्जी तो हमारे पास है, यूथ है, तो जैसे हमने कहा कि सान मुल्क वारिया बोड़ हिस्स नौजवान हिस्स गो एनर्जी माशाअल्लाह, मगर तजुर्बे गसान कम। आज समझो समाजी सतह पे, फैमिली सतह पे, तो हुकूमती सतह पे कि तजुर्बे कूत जरूरत, ये तजुर्बे कार या तजुर्बे याफ्त इंसान अनो ब्रोह कुन मिल एजड एल्डरली क्या एज नंबर वन नाव सोशल कंस्ट्रक्शन। कुछ वो कि लकुट बच्चे या नौजवान ज्यादा कमजोर बुजुर्ग सद खुद, तो हम मेमोरी असल कुछ हदस तान कैंसन इंसान क्या तम अक्सर समाज में बनान, इनमें काफी शुद्ध चीजें भी जो है इस्तेमाल की है, खाइए एक सादा जिंदगी के असरात। आज हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के कहने वाले लोग जो होते हैं ना, बोलते हैं कि जो सादा गजा है ना, इसमें काफी जो आपको जो है एनरिचमेंट मिलता है बॉडी के लिए। अब ये जो डिजिटल डिवाइड किया कहा था आपने, एक रियलिटी है, इसको हमें समझ, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको हमें समझना है और इसको ब्रिज करने की जरूरत है। तो इसके साथ दूसरी बात जो हमें बच्चों की नफ्सियात के लिए मुझे लगता है कम बात हुई। बच्चा जब जो हमारा जो नौनिहाल होता है या एडोलसेंट जो होता है, हमें उसको भी समझने भी काफी जो है परेशानी हमको लगती है और हम गलती भी कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जो आता है अपने माँ बाप के पास, उसका सोर्स और इंस्पिरेशन और इंटीमेसी उसकी ज्यादा अपने माँ बाप से होती है, हमारे पास उसको अटेंड करने के लिए वक्त नहीं है। अब देखिए काफी स्कूल में जब पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीट होता है, वहां पर पेरेंट आता ही नहीं है, या दो में से एक पेरेंट आ जाता है या कोई और रिलेटिव आता है। मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात बताता हूं। और जब शाम को पेरेंट्स घर आते हैं थके हारे, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चे ने दिन में क्या किया। जो हमारे आज सोशल प्रॉब्लम्स है ना नौजवानों में या बच्चों में अक्सर जो है, वो इस वजह से ज्यादा है कि हमें उनको, मैं कदगन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमें उनको सुनने और समझने की ना हम में अब क्षमता रही है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, और ना ही हम अपना टाइम उनके लिए प्रोडक्टिव टाइम इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या हुआ है कि हमारे नौजवान गुनागो समाजी प्रॉब्लम्स में जो है शिकार हो गए। असल में पेरेंटिंग जो है एक बड़ा मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पेरेंटिंग के हमारे लिए, हमारे पास पेरेंटिंग के 3 मॉडल्स हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। एक है ऑटोक्रेटिक, बच्चे को कुछ नहीं करने देना, हमारी मर्जी का उसको गुलाम बनाना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा हमारा लिबरल है, ये खुश कर मैं आजाद, मैं बड़ खान मोल या मैं खान मोल, ये कर या अमिस मोल मोज परवाह कहें, या बहुत मोल अमिस यमिस खुश कर, वो भी गलत है, वो लिबरल मॉडल है। तीसरा हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल है, यानी बच्चे को वो चीज जो कुछ अपने करो, कुछ हमारी सोच, शायद बात उसके लिए हो सकती है कल उसकी उम्र गुजारने के लिए, उसके लिए इसको रिवार्ड दे। बच्चा आपके पास आ रहा है, बाबा मैंने जो है इतने अच्छे मार्क्स लाए, मैं स्कूल में फर्स्ट आया, अव्वल आया, उसको अप्रिशिएट करिए, इसको सेलिब्रेट करिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए। हाँ, अगर आप बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम का शिकार है,
समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नजर दौड़ाए हुए हैं कैसे हम अपने मफाद के लिए किसी बच्चे को किसी चीज का आदी बनाएं। सही बात, आपको समझ में आई होगी बात। जी जी। तो उसके लिए जो है फ्रॉम करेक्शन टू कनेक्शन की जरूरत है। हमें बच्चे से कनेक्ट होना है। पहले हम बोलते थे बच्चे को करेक्ट करो छड़ी से, मारपीट से, उस जमाना खत्म हो गया। हालांकि वो कोरिसो ट्रीटमेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। पनिशमेंट की बहुत सारी और किस्में हो सकती है, जैसे बाप बेटे के साथ एक दिन के लिए बात न करे कि बेटे को समझ में आ जाए कि बाप मुझसे नाराज और वजह भी समझ में आ जाएगी कि और क्या उसके बाद बाप को ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे भी जहनी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कनेक्ट होना है। क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर जो एडोलसेंट बच्चे हैं ना, ये अपना दिल जो है अपने माँ बाप और बुजुर्ग के सामने खोल सकते हैं। कमला दास हमारी इंडियन पोइट बहुत अच्छी रही है अंग्रेजी की। उन्होंने बताया कि जो हम एक बच्ची होती है ना, मतलब 15 साल 16 टीन एज बच्ची जो होती है, जिसको टीन एज कहते हैं, सिनेबलोगेट में जो बच्ची होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट घर जो है अपनी नानी का घर है। उनकी पॉइंट अब देखिए कितनी पीसफुल बात है। एक छोटी बच्ची का अपने घर से सेफ अपनी नानी के घर में जो होता है, नानी इतनी अटैच होती है अपने पोतों से, पोतियों से। तो ये जो एक रिलेशनशिप है ना, आपने देखा होगा पोइट्री में, हाँ जी, थोड़ा मेरा शायरी के साथ जी। पोइट्री में सबसे हसीन बात जो है ना, जैसे आपने आगाज में कहा जाए साहब ने, कि वो है रिश्ते की। हाँ। कैसे हम रिश्ते को जो है आज लैमेंट करते कि हम खो रहे हैं रिश्ते, और ये रिश्ते कैसे उस्तवार या इनको कैसे सेलिब्रेट किया है पोइट्री ने, हमारी शायरी ने, या हमारे प्रोज ने, हमारे अफसाना ने। तो ये कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया है, ये खूबसूरत बात है। कमला दास की जो मैंने एग्जाम्पल दी, वो सनशाइन कैट एक पोइम है उसकी, बहुत खूबसूरत पोइम है कि एक पोती को कितना सेफ होम मिलता है अपनी नानी के घर में। अगर हम ये जाने एज अ माँ बाप कि हमारे बच्चों को सेफ्टी देंगे हम उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमारे जो चौके खुदा ना खासा, मैं नहीं कहूंगा, हम तो घर में कोई किसी को जो है जिम्मेदारी देने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों किसी गैर को बताइए कि आप हमारे घर की रखवाली ले लो, जिम्मेदारी भी ले लो। हमारे बुजुर्ग तो वहां पर है, हमारे बच्चों का जो है, अब मैं नहीं कहूंगा हम उनको चौकीदार बनाए, नहीं। जो एक दादा और दादी अपने पोते के को लाभ दे सकते हैं, वो कोई एजेंसी से रिलेटेड जो आदमी को हम लाएंगे खरीद कर, वो नहीं दे सकता। बहुत खूब, बहुत शहजादा सलीम साहब, एक बात, मुझे 80 की दहाइयों का एक गजल बड़ा मशहूर, उसका एक शेर है कि जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है बहुत हम जुबान नहीं मिलता। ये जुबान का मिलना, हम जुबान का मिलना, बात करना, वो एक मशहूर कंपनी का ऐड है कि बात करने से ही बात बनती है। तो ये बात करना कितना जरूरी है। आपने वक्त की बात की और मैं उसमें जुबान जोड़ता हूं कि बात करना कितना जरूरी है। बच्चों को जिस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त अगर हम शादी ब्याह की महफिलों में जाएं, हत्ता कि ताज़ियत की महफिलों में जाएं, 100 लोग हैं टेंट में बैठे हुए, तो यकीनन 95 से ज्यादा, 95 से ज्यादा जो है अपने मोबाइल के साथ बिजी होंगे। वहां जाते हैं रस्मन वो बायोमेट्रिक करने के लिए, चाहे शादी ब्याह पे जाएं या इस पे जाएं। आजकल ये भी नहीं लगता कि कहाँ दिवान 2 बज लिखित कार्डस पे पी दिवान तुम 6 बज वक्त तरफ रियल तीस फास्ट इंसान सही वनकस थवान कनेक्टेड। ये बात करना कितना जरूरी है, रिश्तों की गैप्स को कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बात करना और बात समझना। बखूबी आपने मेरे दिल की बात छीन ली। आपने सुना होगा कि हदीस शरीफ में आया है, सिला रहमी करने वाले लोगों की एज बढ़ जाती है जी, यानी जो रिश्तेदारों के साथ, अपने हक हमसाया के साथ अच्छे हुस्न इखलाक से पेश आते हैं ना, तो उनकी एज बढ़ जाती है। मैंने इस चीज पे तहकीक की कि ये एज कैसे बढ़ेगी। हाँ, अगर मैं आपसे हम कलाम हूं तो कैसे बढ़ेगी। तो नफ्सियात के मामले में मैंने देखा कि लिसनिंग थेरेपी, जब आप मेरी बात सुन रहे हैं या मैं आपकी बात सुन रहा हूं, हमारे बहुत सारे केमिकल्स और हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं इस दौरान जी। तो ये हमारे लिए एक बफर है, कोपिंग स्ट्रेटजी है। मैं आपके सब्जेक्ट के हवाले से बोलूंगा। जब हम बहुत तंग आते हैं जिंदगी की मुश्किलात से, उतार चढ़ाव से, तो हम एक पुराने दोस्त से जब 2 मिनट गुफ्तगू करते हैं, आप देखिए कितना फर्क आ जाता है, हल्का हो जाता है मन। तो जब आप रिश्तों से, खून के रिश्तों से जो आपके है, उनसे आप हम कलाम हो जाएं कि चाचा है, दादा है, माँ बाप है, भाई है, बहन है, तो जब आप उनसे हम कलाम हो जाते हैं, आपके काफी केमिकल सिक्रीशन जो और एंडोमॉर्फिन्स जो ब्लड में आ जाते हैं, जो एक हार्मोन के तौर काम करता है और आपको सोलेस देता है।
जो अभी पीस पे आ जाए ना, आपका पूरा नर्वस सिस्टम पीस पे आ जाता है, तो आपकी जो ब्लड जो सर्कुलेशन हो जाती है ना, ये भी एक नॉर्मल ऑप्टिमल लेवल पे आ जाती है और आपकी उम्र बढ़ सकती है। मैंने इस पे कुछ चीजें कंखाली भी, मतलब इंटरनेट का जमाना है। जी। मैंने देखा यूरोप में कुछ चीजों पे बहुत रिसर्च हुई है, जैसे ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी का, तवक्कुल का, और रिश्ते को उस्तवार रखने का। और अगर हम दादा दादी के हवाले से बात करेंगे, शाम को बैठकर दादा दादी की कहानी सुनकर कौन बड़ा नहीं हुआ है, तो ये जो वो बताते थे उसमें एक ऐसा आनंद था, एक ऐसा ट्रांसमिशन था हमारे कल्चर का, जो हम बड़े बड़े यूट्यूब से या बड़े बड़े गैजेट से, बड़े बड़े मीडिया हाउसों से अपने बच्चे को अपना कल्चर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, जितना आप बुजुर्ग की कोई बात सुनकर, शाम को कोई कहानी सुनकर उसकी गोद में बैठकर जो सुकून और सुरूर आपको मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये बात जो है ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, और इस बात के हवाले से हम और भी बात करेंगे। माजरत हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां हमारी है, आपकी इजाजत से एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये कारामद गुफ्तगू जारी रहेगी, एक वक्फे के लिए रुकते हैं और फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के, और आज के शुमारे में हमारे साथ खास मेहमान हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर शहजादा सलीम साहब। डॉक्टर साहब, इस कॉन्वर्जेशन के हवाले से यूजन ये कहत बात इस पान विंच कर, और प्रोग्राम में भी हम अभी बात कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे भी हार्मोन्स बहुत खुश हैं, रिलीज हो रहे होंगे, और हमारे नाजरीन के भी, क्योंकि बहुत खास गुफ्तगू चल रही है। चूंकि यह गैप दरमियान आसन, चाहे एज गैप गसान, जनरेशन गैप गसान, वन अत सत चूंकि नौजवान पान दोस्त आसान, रिलेशन आसान, सिबलिंग्स आसान, युस जन यम मामले ये ना समझी या ना अंडरस्टैंडिंग, यह तथ दरमियान यमन कित पठन सपदन यम चीज दूर। मे बसान अस कर अत चीज पे बखूबी कत, मगर कत करने जरूरत। सो यह कि इत पे तुम फरमो दाद साहब फरमान कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप इत पे मे तुम एग्जाम्पल वन कि साइंटिफिकली अम एज बढ़ान त, अगर इन चीजन पे तहकीकी कर तो पे गाशरावन, तो सानिस यूथस वनकन मुख्तलिफ जिमन हूं रुख करान, वॉकिंग हूं पे हेल्थ फैसिलिटी हूं थवान ख्याल, वारिया असल चीज हेल्थ कॉन्शियस, पतमस में वारिया हेल्थ कॉन्शियस। या बह वन एग्जाम्पल वो पे सोसाइटी मज क्या सोशोलॉजी सत खास रबत सो यह कि फ्रूट्स पतम जमान में इस्तेमाल करान इस्तेमाल। अगर अख चीज यह बे जान कि बाइंडिंग समाजस मज, इंटीग्रेशन समाजस मज रिश्तन हिज, यह न सिर्फ सानिस समाज खतर बल्कि सानि हेल्थ खतर, तो सानिस समाजी हेल्थ खतर जरूरी। बस बह वन तुम हेल्थ अकी किस्म, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, EQ ये इमोशनल मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ आज वन हेल्थ में भी डिवाइड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग यह कि इंसान रोज पन्निस मजहब सत अटैच, स्पिरिचुअल वेलबींग सह गो अस्ती अटैचमेंट गई अस्ती। स्पिरिचुअल वेलबींग कि सह थी पन तम ख्यालात पाकीज़, सह थी पन सह अंदरून तो बीरून तो तथ मज रबत कर पैद कि तमिस गस सेहतस मज पैद उस्तवार डेवलपमेंट। अगर सान यूथन यानी नौजवान यह वन कि यस चीज खतर तुम पोस सर्फ करान सह गरे, बल्कि यह ना कत वो वन ती हवस मज कत। आप देखिए रिसर्च गेट पे जाइए, गूगल में जाइए, गूगल स्कॉलर में जाइए, साई हब जितनी भी आपकी वेबसाइट्स है, आप सिर्फ रिलेशनशिप क्लिक करिए, रिलेशनशिप बेनिफिट्स और एडवांटेज, आपको हजारों लाखों पेपर्स मिलेंगे जिनपे ये रिलेशनशिप हुई है कि इंटीग्रेशन कितनी जरूरी है। एक तो ये, दूसरा जो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की गुबारी खातिर एक मशहूर तस्नीफ है, उसमें मसरत का सरचश्मा एक आर्टिकल है, उसमें बताया कि इंसान को अल्लाह ने इस तरह पैदा किया जैसे अपने खलीफा की बात, इन्नी जारुल फिलाद खलीफा, मैंने उसको ऐसे बनाया, इस जमीन पे खलीफा बनाया जी। इसकी जिम्मेदारी है कि ये बाइंड जो है लोगों से करे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब फरमाते हैं कि ये तन्हा अपनी हवाइज को पूरा नहीं कर सकता है। ये हमारी सिर्फ ये नहीं है, बात नहीं है करने की बात, बल्कि ये जरूरत बन गई है। जो इंडिविजुअलिज्म है ये अपनी आपकी सेहत पे बहुत असर कर रहा है। परसों हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहां पर एक मशहूर सरकर्दा डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 घंटा तन्हाई में जब आप बैठते हैं तो खुदा ना खास्ता
एक सैकड़ों सिगरेट 1 मिनट में पीने के बराबर है। जितना आप ये जो खुदा ना खासा मैं कहूंगा, जो सिगरेट स्मोकिंग जो असर होता है, अगर कोई 1 मिनट में 100 सिगरेट्स को फूंके, जो बहुत मतलब मैं कहूंगा हानिकारक मिकदार है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम उसको हो सकती है अगर वो 1 घंटा तन्हाई में इस तरह बैठे कि लोग उसे बेजार हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम बात, चूंकि प्रोग्राम के आखिरी मराहल में हम दाखिल हो चुके हैं, वश वुन कि ये गैप अस कर कत अमिक नुकसान फायदे त वन तुम वारिया कि अगर वो यह कि हु विल बेल द कैट, बुजुर्गन पे कम जिम्मेदारी कि समझन नौजवान तो शुरन त, नौजवान पे कम जिम्मेदारी कि तम समझन बुजुर्गन तम तिमन ब्रोट तो शुरन जन तिमन पत तो शुरन पन्न पेरेंटन या ग्रैंड पेरेंटन। ये जन यम गैप्स कित करो फिल या कित करो कम, एक दूसरे को समझने के कौन से नुस्खे ऐसे हैं जो आज इस वक्त हम देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर शहजादा सलीम साहब को देख रहे हैं, हमारे इस्तेफसारात को सुन रहे हैं, इन चीजों को कम करने के लिए आज का प्रोग्राम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे एक ऐसा पैगाम लेकर के जाए लोगों के सामने कि हाँ वो एक तब्दीली महसूस करें कि हमने डॉक्टर साहब से ऐसा सुना था और हमने इसको रुबामल लाया और तब्दीली आ गई है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो है वो एक मुहासबा है, इंट्रोस्पेक्शन पहले हम करें। किसी ने मुझे परसों पूछा एक लेक्चर में कि सर आपको कौन सी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम सबको ज्यादा लगती है जी। उनका ख्याल था शायद ही सुसाइड बोले, ड्रग एडिक्शन बोले या कोई चीज बोले, वो चीजें तो है। मैंने उनको बोला आज के जमाने की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम है फैमिलीज ब्रेकिंग, खानदान टूट रहे हैं जी, फैमिलीज अलग हो रही है। तो इससे आपके दिमाग पे तो है ही, लेकिन समाजी बर्डन्स भी बहुत काफी बढ़ गए हैं। जैसे एक बच्चा है, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाला बच्चा, उसके माँ बाप बीमार हुए, उसकी एज 10 साल है, वो एक अलग मकान में रह रहा है, बताइए वो कैसे अपने माँ बाप को रात को, या बाप जो है ज्यादा बीमार हो गया, माँ गाड़ी चलाना नहीं जानती है, गाड़ी की जरूरत पड़ी जी, तो उसको तो खटखटाना एक नेबर का दरवाजा ही, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का बच्चा अचानक खुदा ना खासा किसी के बाबा को हार्ट अटैक आ गया, बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में एक दादाजी भी उसका रहता है, बाप घर पे नहीं है, किसी एमएनसी के साथ काम कर रहा है, बताइए आप क्या करेंगे? तो यहां पर आपको जरूरी किसी की मदद लेनी है, दुरुस्त। तो यहां पर जो है आप लिमिट करिए, अनलिमिटेड लिमिट करिए, जिसको हम एक्सक्लूड और इंक्लूड करिए। आप सिर्फ खुद को ही अपना घर न माने, बल्कि अपने मोहल्ले को भी अपना घर माने। आप जब आप ये फीलिंग आप में आ जाएगी ना, तो आपको शाम को अपने जो मसरूफियात है इसमें से 10 मिनट 15 मिनट आपके नेबर या रिलेटिव के साथ भी गुजारने हैं। तो हम बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, जब आप गुजारेंगे वो भी गुजारेगा। ये एक मौका शायद फराहम कर सकता है हमें जी, क्योंकि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इसका ख्याल रखा गया है, बाहर लोग क्लब्स में जाते हैं, सोशल क्लब्स। हाँ, यहाँ पर तो क्लब्स भी नहीं है, सोशल क्लब्स की बात कर रहा हूँ जी जी, कोई इससे दूसरा मतलब ना ले। तो वहां पर सोसाइटी से छोटी छोटी जो सेलिब्रेट भी कर रहे। और एक बात मुझे आई है बात, हम सेलिब्रेशन को भूल गए। अब बोलेंगे सर सेलिब्रेट अगर हम करते भी हैं ना, उसमें इतना एक्स्ट्रा वेगन्स होता है और इतनी फॉर्मेलिटीज और इतनी फजूल खर्ची होती है। सेलिब्रेशन का मतलब है कि मैंने अपनी मदर से सुना, अल्लाह ताला मगफिरत करे उनको, वो बोला करती थी कि जब रमजान का वक्त होता था इस सोसाइटी में तो हम रुफ करते थे। बिल्कुल सही बात। ईद पर एक दूसरे के घर जाकर उनको मुबारक कह के वो भी हमारे घर आके, शाम होती थी, अभी हमारे रिश्तेदारों के साथ मेल जोल खत्म नहीं होता था। आज इंसान ईद के दिन भी बोर हो जाता है, मैं कौन सा काम करूं। तो कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं कि हमारा जो है रब्त लोगों के साथ कितना जरूरी है। बल्कि मैं कहूं कि एक घर में ये बातें रिपीट हो रही है और होनी भी चाहिए कि एक घर में रहकर जो 5 आदमी है, पांचों के आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। पांचों के पास 5 मोबाइल सेट्स है जो अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब हम पिकनिक की रेक्रेशन और सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं ना, रेक्रेशन की बात कर रहा हूं, रेक्रेशन की कम मौके यहां है। हमारे बुजुर्गों को जगह जो मिलती है सड़क पर बैठने की जगह मिलती है, बुजुर्गों के लिए पार्क्स
चलो वो दूर की बात थी, कहीं बैठने की आपस में गुफ्तगू करने की भी जगह नहीं थी। आप फिर कश्मीर की, जम्मू कश्मीर जो हमारे यूटी है, इसकी आप बात करें कि और कुछ दहाइयों पहले बुजुर्ग आपस में एक दरबार लगाते सुति रो यार बल पे साम मस्तूरात पान एग्जैक्टली अकिस बेस कत कर पन दिलुक बोस या पन बोस लचरावान तो सह वह कहें। तो अब आपकी लाइफ इस मोबाइल के अंदर बंद हो गई है कि जिन की तरह ऐसे जिस जिन को हमने बोतल में बंद किया है। अब देखिए कि आप, इसलिए मैंने कहा मुहासबा बहुत जरूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और में करना क्या है। और एक डायरेक्शन जो सोशल कोहिजन हमारा होता है समाज का, वो बहुत जरूरी है। एक विलेज में या एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग हुआ करता था, सोच मना करता कुछ ही का सुन यार, एक फीलिंग ऑफ वननेस होती थी। आज जब हमें कोई कहे बोलेंगे हम ये डिस्टर्ब कर रहा है क्या चीज है, क्या तफरीक ये मैं तुझ में पानी मर्जी मे पे याद बड़ जरूरी कत सोशोलॉजी समाजात सोशल कंट्रोल दोन किस्मन इनफॉर्मल बे फॉर्मल। फॉर्मल गो हमारे पास पुलिस का महकमा है, एनफोर्समेंट एजेंसीज है, ये हमारे सोशल कंट्रोल फॉर्मली करे। इनफॉर्मल का मैं है हमारे यहाँ गांव के बुजुर्ग है, हमारे यहाँ कमिटीज है जो मोहल्ले की कमिटीज है, सोशल रिफॉर्मिंग जो यूनिट्स मोहल्ले में है, हमारे यहाँ रिश्तेदार है। अगर किसी टीनेज लड़के को हम खुदा ना खासा छोटी सी सिगरेट फूंकते ही देखते थे, हम उसके घर जाते थे, एक बुजुर्ग भी जाला था, उसकी भी जिम्मेदारी थी। आज उसने भी अपनी जिम्मेदारी बोल दी है क्योंकि उसको वो फीडबैक नहीं वहां से मिला, शायद डर रहा है कि ये बच्चा जो है मेरी इज्जत जो है उतारेगा। तो ये जो है यार मुझे ऐसे बात करेगा कि मैं फील करूंगा एक बुजुर्ग। यहाँ तो हर एक मजहब ने बुजुर्ग के साथ इतनी नरमी से पेश आने की जो है बच्चों से प्यार किया। एट द सेम टाइम हम दोनों भूल गए नहीं, हमारे बुजुर्गों में जो बच्चे के साथ प्यार से पेश आए, जैसे पेश आए। हाँ अगर आ भी सकते हैं कुछ ऐसे है, लेकिन बच्चों में बिल्कुल वादा खत्म हो गया क्योंकि हमने उनके नहीं रखा है, हमने उनको मौका नहीं दिया सोचने का। डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ चंद मिनट प्रोग्राम में बचे हैं और मैं जाते जाते एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे कौम में, हमारे मुल्क में ज़ख़ीरा है नौजवानों का। हम नौजवान, ये नौजवान बुजुर्गों से कैसे वो तजुर्बात हासिल करें ताकि पूरी जिंदगी में इनको वाकई में कामयाबी मिले। देखिए ट्रांसमिशन का बहुत जरूरी है, बैठकर आप जब बैठेंगे ऐसे नहीं है, और आप उसको इल्तिमास करके बता सकते हैं, आप उसकी लाइफ को मॉडल बना सकते हैं, आप उसकी सुबह सवेरे उठने की आदत को देख सकते हैं, आप उसके लहजे की नरमी को महसूस कर सकते हैं। एक नौजवान आप उसने जो हासिल किया, हर कोई तो अनपढ़ नहीं है ना, कुछ बुजुर्गों ने ऐसे सतह, आज हम जिस जवान लोग जहां बैठे हैं ना, ये दुनिया बुजुर्ग की बनाई हुई दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। क्योंकि कुछ साल पहले जो हमारे वालिदैन थे, हमारे नाना नानी थे, उन्होंने ये दुनिया बसाई है, उनकी वसादत से हम यहां पर बैठे हुए हैं। हाँ अगर हम उनके साथ जो हम बात कर रहे थे, इसका लुबा भी यही है, मुझे लगता है इस गुफ्तगू का, कि कनेक्शन बनाइए, उनको इंस्पिरेशन बनाइए, उनके साथ जो एबरेंस करने की ना, हमें लगता है कि ये बूढ़े लोग हैं, मतलब ऐसी कराहत, उसके बजाय उनको बोलिए ये हमारे बुजुर्ग है, ये हमारी ज़ख़ीरा है, पूरी विजडम का ज़ख़ीरा कहाँ रख सकते हैं आप, आर्काइव में भी रखेंगे, डिलीट हो सकता है। हाँ तजुर्बात का ज़ख़ीरा, वो ज़ख़ीरा बुजुर्गों के दिमाग में है, उनके वजूद में है, उस वजूद को आप खुद को समा सकते हैं उनकी बातों से, उनके साथ बैठकर, उनके साथ गुफ्त शनीद होकर, उनकी जिंदगी को देखकर और उनके तजुर्बात को अपनी जिंदगी में जो है उतार कर जब आप बैठेंगे तभी आपको लगेगा, तभी आप देखेंगे। जब आपके पास टाइम नहीं है खुद पे ध्यान देने की, तो आप बुजुर्ग भी इतने फास्ट हो गए हैं। मैंने परसों जाते जाते ये कहूंगा कि एक जगह डिप्लोमा इन हैप्पीनेस कराया जाता है यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा कि ये डिप्लोमा में हैप्पीनेस में क्या पढ़ाया जाता है, जरा हम भी देखें। मैंने देखा फर्स्ट है स्टिलनेस, आपको कैसे करार लाना है जिंदगी में, आपको करार नहीं है। हाँ? आपको दूसरा चैप्टर था ग्रेटिट्यूड, आपको कैसे शुक्रगुजारी करनी है। तीसरा तवक्कुल, आपको कैसे तवक्कुल करनी है। ये तजुर्बा आपको किताबों बुजुर्गों से मिलेंगे कि उन्होंने काफी काम इसमें किया है और खुद भी ऐसे हुए हैं। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि आज की प्रोग्राम से अगर हम सीख कहें 3 लफ्जों में, वो ये कि हमें वक्त देना है, हमें एक दूसरे को सुनना है और हमें एक दूसरे को समझना है। मुझे लगता है कि ये 3 चीजें अगर हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम से, हम
यही बात लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हम अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। हमारे जो साथी हैं अजहर अक्सर प्रोग्राम के अख्ताम में वो हमें कहते हैं कि अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिए, बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिए। ये हमें अपनी जिंदगी में अमलाना है। हमें बुजुर्गों का वालिहाना उनका इस्तकबाल भी करना है और उनका एहतराम भी करना है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई वेस्टिजियल ऑर्गन है, हम कोई इस सोसाइटी का वो हिस्सा हैं जिसे नकारा गया है। ऐसा नहीं है, उनको वो वाजिबुल एहतराम है और उनका एहतराम कीजिए। बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिए, उनकी बातें सुनिए। यकीन मानिए कि जब बच्चे के साथ आप टाइम करेंगे तो वो किलकारियों में आप दुनिया के गम भूल जाएंगे। सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक घंटा हमारे साथ बने रहे। कल हमारे दो और साथी इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश करेंगे। आज की निशस्त से दीजिए मुझे और अशफाक को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट